Hello friends, you are welcome in Ganesh English class 0.1. Actually, today we are going to discuss about the character of Hari Singh, class 10th NCERT from supplementary reader. The thief's story has been written by Ruskin Bond. Hari Singh was a 15 years old but uneducated person. He used to steal the money always. So time to time and place to place he used to change his name. Once upon a time he met with a Anil Singh. Anil Singh was a successful magazine agent. On that time Anil Singh was watching the wrestling match. Suddenly Hari Singh came near Anil Singh and requested to live with him. But Anil Singh said, I am a single person. I have no need of a servant. My salary is not so enough. So I have no any need for you. But Hari Singh continued, requested and requested. Anil Singh said, no. I am a single person. I live in a simple room rent. Hari Singh always requested and said, please allow me to live with you. Without salary, I will help you in your work. At last time, Anil Singh said, yes, you can live with me, but it is a promise that you know how to prepare food. But Hari Singh was a unknown person. He doesn't know how to prepare food, but due to the circumstances, due to the problem, he said, he accepted, yes, I know how to prepare food. But when Hari Singh prepared food, cooked food, it was tasteless, it was useless. On that time, Anil Singh did not become angry, but he ported the hand and said, don't worry, Hari Singh, I will teach you how to prepare food and I will solve your problem in math and some sentences also. Anil Singh was very important person for Hari Singh because always Anil Singh was giving so many good manners, so many qualities, so many rules of discipline and how to do any types of work in the life. Anil Singh was a magazine agent, but he was a careless person. He used to spend the money among the roughly friends and mistress. He used to drink always. One day, when he got the salary, he put the money under the mattress, under the bed, and he slept. On that time, Hari Singh said, yes, oh God, I like you. Today, I have seen a big amount. He stole the money and he went railway station for God. But on that time in railway station, he was thinking, what will be my future? This amount, I can earn more and more money in my life. But I can't get these types of rules, deep types of good manners. Singh used to give me so many important idea how to live in the world. So I should not steal the money. The train is going and going, going and going, going and going. But he was thinking continue in the railway station. But at last time, he decided himself, no, money is external. I can earn more and more money in my life. But I can't get these types of knowledge. So he came back. And on the time, it was raining, tip tap, tip tap, tip tap, tip. And due to this rain, money became wet. He put the money under the bed. Anil Singh knew the mystery of Hari Singh, but he did not say anything to Hari. And he promised, oh Hari, don't worry, since today I will give you a salary every month. And Hari Singh became a very important person, great person in the heart of Anil Singh because he was a honest person. He did not steal the money and he came back due to the honesty.
So Anil Singh became very faithful on Hari Singh and he promised that you will live with me always with jolly mood. दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हरि सिंह 15 साल का एक लड़का था। वो पढ़ा लिखा नहीं था और बचपन से ही क्या करता था, चोरी का काम करता था। हमेशा वो चोरी 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 किया करता था। वो जहाँ भी जाता था, जिस भी जगह में जाता था, वो अपना नाम चेंज कर लेता था। क्यों? क्योंकि वो एक चोर था और उसको डर था और पुलिस के डर के मारे वो क्या करता, अपना नाम हमेशा प्लेस टू प्लेस में वो चेंज करता था। एक बार की बात है, वो कहीं गुजर रहा था, अचानक एक रेसलिंग मैच चल रहा था। वहां पर जो एक अनिल सिंह था, बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति था, वो मस्ती से क्या कर रहा था, वो मैच को देख रहा था। अचानक वो उसके सामने जाते हैं और बोलते हैं, महाशय मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, मैं आपके कामों में हेल्प करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे क्या कीजिए, ये काम के लिए मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। बट अनिल सिंह ने कहा कि मैं सिंगल पर्सन हूँ, मेरी जो सैलरी है वो भी ज़्यादा नहीं है और मैं एक छोटा सा रूम रेंट में रहता हूँ और मुझे कोई नौकर की आवश्यकता नहीं है। एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आप मेरे पास रह सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आपको खाना बनाने आता है। ये जो हरि सिंह था उसको खाना बनाने नहीं आता था, लेकिन उसने प्रॉब्लम के कारण, समस्या के कारण उसने कह डाला कि हाँ मुझे खाना बनाने आता है। लेकिन जब उसने खाना बनाया, ये बहुत ही क्या था, व्यर्थ था, स्वादिष्टहीन था, यानी थोड़ा सा भी स्वाद नहीं था। तब वो क्या करता है, गुस्से में नहीं आया, अनिल सिंह जो था ना गुस्से में नहीं आया, बल्कि वो इज्जत के साथ, प्रेम के साथ उसके कंधे पर हाथ रखता है, बोलता है चिंता मत करो, मैं आपको हर मैटर, चाहे खाना बनाने का हो, चाहे आपका गणित का हो, चाहे आपको कोई भी सेंटेंस में समस्या आती हो ना, मैं आपको हर कुछ सिखाऊंगा, आप चिंता मत करें, मैं आपको टाइम टू टाइम हर कुछ आपको सिखाऊंगा। ये क्या किया, उसके साथ प्रॉमिस किया और हमेशा उसको क्या करता, एक अच्छा लेसन देने का काम करता था। लेकिन जो अनिल सिंह था वो बेचारा क्या था, करेक्टरलेस पर्सन था, उसका चरित्रहीन था, कभी वो पी के कहीं सोया रहता था, उसको लवारिस व्यक्ति था और उसके पास कोई समय की पाबंदी नहीं थी। एक छोटा सा काम तो करता था बेचारा, लेकिन क्या था, वो उसकी पैसे जो होती थी वो पैसा को अपने जो रफली स्टूडेंट्स थे उन सबों के साथ वो पैसा को बर्बाद कर दिया जाता था। यानी पैसा जो मिलता था वो पैसा को रख नहीं पाते थे, पैसा इधर से आया वो इधर वो खा पी के समाप्त कर देता था। यानी इस प्रकार का व्यक्ति वो था। देखने में तो बहुत स्मार्ट थे, उनकी सैलरी भी कम थी, लेकिन पैसा की जो खर्च वो ज़्यादा करते थे। अंतोगत्वा एक दिन वो क्या होता है, जब उसको सैलरी मिला, वो सैलरी को क्या करते हैं, वो ले लेते हैं और क्या कहे घर आ गए। उसने क्या किया, अपना जो बेड था उसके नीचे में सारे पैसे को रख देता है और आराम से वो सोने का बहाना करता है। वो बिल्कुल सोया हुआ नहीं था, लेकिन वो देख रहा था कि ये क्या होने वाला है। उसने उस समय ये सोच ही रहा था कि हरि सिंह ये मौका का फ़ायदा उठाना चाह। वो सोचा वाह भगवान, आज ने मुझे क्या किया है, एक बहुत अच्छा मौका दिया है और ऐसे मौका को हमको गंवाना नहीं चाहिए। वो आराम से क्या करता है, पैसे को लेता है और रेलवे स्टेशन चला गया, क्योंकि अब वो ट्रेन पकड़ के घर चला जाता। तो वहाँ पर जब रेलवे स्टेशन गया तो वहाँ पर वो सोच रहा है, ये पैसा मेरे लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है, पैसा तो मैं लाइफ में बहुत कमा सकता हूँ, लेकिन जो अनिल सिंह मुझे बता रहा था, जो ज्ञान मुझे दे रहा था, जो एक्सपीरियंस मुझे वो दे रहा था, वो सारी चीज़ मैं लाइफ में फिर पा नहीं सकता हूँ। उसके मन में ये सोच आया और वो क्या करता है, वो पैसा लेकर वो पुनः अनिल सिंह के घर की ओर लौट आता है। उस समय हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, इसके कारण क्या हो गया, उसके पैसे भी भीग जाते हैं। वो बेचारा आया और क्या क्या बेड के नीचे उस पैसे को रख देता है और रखने के बाद वो क्या करता है, वो ये सोच रहा था कि क्या होगा, क्या होगा, कहीं पता तो नहीं चल गया। तो अनिल सिंह को ये सारा बात पता चल गया था, लेकिन उसको एक बात भी नहीं बोला कि आपने पैसा क्यों चोरी किया, आपने क्यों भागा। वो कोई भी बात उसको बताया नहीं। उसको ये समझ में आ गया था कि ये ईमानदार व्यक्ति है, क्योंकि पैसा ले भी गया था लेकिन फिर भी वो पैसे के साथ वो आ गया। और उसने प्रॉमिस किया, अनिल ने प्रॉमिस किया हरि सिंह से कि हरि सिंह आप टेंशन मत लो, आज से मैं आपको क्या करूँगा, सैलरी दूंगा, यानी आपको वेतन मिलेगा और आप आराम से क्या कीजिए, मेरे परिवार का एक सदस्य हैं, आप इज्जत से अपने मेरे घर में रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मेरे घर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए। क्यों? क्योंकि आपकी जो ईमानदारी है वो मेरे दिल को भा गई। और इसी के कारण वो अनिल सिंह जो था ना, हरि सिंह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बन गया और हरि सिंह भी क्या हो गया, अनिल सिंह के लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सन बन गया। यानी दोनों व्यक्ति आपस में मिलके एक अच्छी जीवन जीने लगा। तो इस प्रकार से अनिल सिंह और हरि सिंह के बीच का जो सारी संवाद था वो क्या होता है, धीरे धीरे जो भी
वो प्रॉब्लम था वो ख़त्म होता गया और हरि सिंह एक चोर होते हुए भी क्या करता है, ईमानदारी का रोल अदा करता है। तो इस प्रकार से अनिल सिंह और हरि सिंह दोनों इस जो स्टोरी है थिप स्टोरी का एक बहुत ही अच्छा हिस्सा निभाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों को भी ईमानदारी का पाठ सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और ईमानदारी में चलना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। थैंक